Hello everyone. In previous lecture we were discuss about the normality, concept of normality, number of equivalent, number of gram equivalent, clear, and some questions related to number of equivalent. Now we have the another type of the questions in which the normality and molarity calculation. First question is the calculate the normality of molarity is given in the question, and our last formula is the normality is equal to वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी. इस वैलेंसी फैक्टर को मैं एन फैक्टर भी लिख सकता हूँ, क्लियर. एंड 4m_H2SO4 सॉल्यूशन. फर्स्ट इज द 4m_H2SO4 solution, clear. 4m_H2SO4 solution, then normality is the valency factor into molarity. Valency factor of H2SO4 is equal to 2 because it can be donate only the 2 hydrogen atom, and molarity is the 4, so its normality will be the 8. Is that clear? Second is the 0.5 m(H3PO4). Second is the 0.5 m(H3PO4). We know that the valency factor or n factor for the H3PO4 is equal to 3. So their normality is equal to molarity dot valency factor. Molarity is the 0.5 m multiply with 3, it is give the 1.5 m. And third one question is the 0.2 m mgOH. Third question is the 0.2 m of mgOH whole is 2. The molarity of this 0.2 and the valency factor is also the 2 because it is the base and it can be donated the 2OH. तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी होगी? 2 होगी. वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा. सो वी कैन राइट नॉर्मलिटी इज द 0.2 मल्टीप्लाई विद 2, इट इज द 0.4. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज द 2m AlOH whole is 3. AlOH whole is 3. It can be donated the 3OH, so their valency factor n factor is equal to 3. Then normality is equal to 2 into 3 is equal to 6. Is that clear? So our first type of question in which the molarity is given and we want to calculate the normality, and we easily calculate all these questions. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट मोलरिटी. मोलरिटी कैलकुलेट करनी है. वी नो दैट नॉर्मलिटी इज द वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी. देन मोलरिटी इज नॉर्मलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर. इन फर्स्ट क्वेश्चन 2n H3PO4 their valency factor is equal to 3, so this is the 2/3. It's the answer. Is that clear? In the next one question, it is the n/10 H2SO4. n/10 means 1/10. It is the normality. n/10 H2SO4. Their valency factor is equal to 2. So there is the 1/20. And next one question is the n/20 H3PO4. n/20. And their valency factor of H3O4 is equal to also 3. So it is the n/60. Sorry, कितना होगा ये? 1/60. नॉर्मलिटी को यहाँ से हटा देना है. एंड 0.6 NaLOH whole is 3. दिस इज द 0.6 and AlOH whole is 3 is the 3, so is the 0.2. क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन विच बेस्ड ऑन द वैलेंसी फैक्टर, जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करते हैं? वैलेंसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहे थे, जिनको आपने इजीली सोल्व कर दिया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज find normality of 50 gram calcium carbonate present in 500 ml solution. Find normality of 50 gram CaCO3 calcium carbonate present in 500 ml solution. We know that normality is the number of mole into n factor divided by volume taken in liter. And
number of moles can be written as weight by molar mass into n factor and divide by volume taken in liter. This is the amount in gram which is the 50 gram and molar mass of the calcium carbonate is the 100. वो सोल्व करके देख लेना आप 100 ही आएगा उसका. And n factor of calcium carbonate total positive charge or total negative charge it is the 2 and volume is the 500 ml but we want to convert into the liter. किसमें चाहिए आपको लीटर के अंदर. तो इसको सोल्व करना आपके पास क्या जाएंगे इसके आंसर आ जाएंगे. दिस इज ऑल्सो द वेरी सिंपल क्वेश्चन. Our next question is the 0.5 gram base was completely neutralized by 100 ml of 0.2 N acid. Find equivalent mass of the base. We know that when acid and base are react to each other, this reaction is called the neutralization reaction. This reaction is known as the neutralization reaction. ये reaction क्या कहलाएगी? Neutralization reaction. Clear? 0.5 gram base was completely neutralized by 100 ml of 0.N acid. Find equivalent mass of base. हमें क्या करना है? बेस का equivalent mass कैलकुलेट करना है. Clear? We know that those type of questions are based upon the number of equivalent. जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या कंब्यूशन के जो रिएक्शन क्वेश्चन सोल्व करोगे वो किस पे डिपेंडेड है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट एक ही बात है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस. इज दैट क्लियर? हाउ कैन यू प्रिपेयर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस? देखिए यहाँ पे तो आपको क्या दिया हुआ है? नॉर्मलिटी दी हुई है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है. क्लियर? एंड वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिस इज द वॉल्यूम विच इज टेकन इन लीटर. When normality and volume are the product of normality and volume give the number of equivalent and this is the acid. So we multiply the normality with the volume. Volume must be taken in liter. Then we get the number of equivalent. So it is the 0.2 multiply with 100 and divide by 1000. So it is the 1 by 10 or we can say it is the 0.1 and it is the 0.02 equivalent. And this is also the number of equivalent of acid must be equal to the number of equivalent of base. किसके इक्वल होने चाहिए? वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस के इक्वल होने चाहिए. बेस के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है? अमाउंट इन ग्राम दी हुई है और अमाउंट इन ग्राम से आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है 0.5 ग्राम एंड फाइंड इक्विवेलेंट मास. फाइंड इक्विवेलेंट मास. वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन टेकन इन लीटर. एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. वी ऑल्सो नो दैट number of gram equivalent or number of equivalent is equal to amount in gram divided by equivalent mass. It means number of equivalent is the product of the normality and the volume, and also know that the number of gram equivalent is the amount in gram divided by equivalent weight, which is also hint is available in our question. ये hint आपके question में भी available थी. Then it is the W by E. What is the W in the question? Question is the 0.5 and this is the E. It means equivalent mass is the 0.5 divided by 0.02. इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 5 into 100 and 2 into 10. This is gives it is the 25. कितना आया आपके पास equivalent mass? 25. Is that clear? Our next question is the 0.45 gram of acid
also gives the molecular weight 90, was exactly neutralized by 20 ml of 0.5 NaOH. Is that clear? Find basicity of acid. Find basicity of acid means we want to calculate the number of H plus donated by acid. It means we want to calculate the valency factor or N factor of acid. This equation is also based on the neutralization reaction. So we can say number of equivalent of acid is equal to number of equivalent of base. Is that clear? भाई दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अमाउंट इन ग्राम दी हुई है एंड मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, was exactly neutralized by 20 ml and 0.5 NaOH. Is that clear? देखो ये दोनों मेरे को क्या दे देगा, ये दोनों मिलकर मेरे को क्या दे देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस दे देंगे. एंड 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, वी नो दैट number of mole into n factor gives the number of equivalent, and we also know that the normality and volume also give the number of equivalent. Is that clear? तो आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर ही तो कैलकुलेट करना है. एन कैसे बनाओगे, W बाई मोलर मास या मोलिकुलर वेट देन एन फैक्टर इज इक्वल टू एन इंटू वी. What is the amount in gram? It is the 0.45 and it is the 90, and this is the n factor and is equal to n into volume. Normality of the base is the 0.5, and what is the, it is the 20 ml. It means 20 by 1, 2 and 3. एंड अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है. इसको भी सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये, और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 100. सो इट इज गिव द 1/100. वो क्या देगा आपको 1/100. इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया 1 2, इट इज गिव बाई द 1/200. इट इज द 1/200. एन फैक्टर इज इक्वल टू दिस इज द 1/100. क्या कैलकुलेट करना है आपको, एन फैक्टर इज इक्वल टू 200/100 इज इक्वल टू 2. कितना आएगा एन फैक्टर आपके पास 2 आएगा. इज दैट क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डाईवेलेंट मेटल इज 24. इक्विवेलेंट वेट दिया है डाईवेलेंट मेटल का कितना है 24. द वॉल्यूम ऑफ H2, द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड एट STP by 12 ग्राम ऑफ सेम मेटल, by 12 ग्राम ऑफ सेम मेटल when added to excess of an acid, when added to excess of an acid, equivalent weight of divalent metal is 24. equivalent weight of divalent metal कितना दिया हुआ आपको 24 दिया हुआ है. देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपन दो तरह से सोल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को. एक तो क्या, जैसे अपन नंबर ऑफ मोल से सोल्व करना चाहे, जैसे अपन ने आवोगैड्रो लॉ पढ़ा था उसके बेसिस पे, या आप इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट पे करना चाहो तो देख वी नो दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर. इन दिस क्वेश्चन the magnesium solid react with 2 amount of HCl, then it gives the MgCl2 plus H2 gas. Examiner ask the volume of H2 gas. Volume of H2 gas. Examiner ask about the volume of H2 gas. ये पूछ रहा आपसे examiner volume of H2 gas. Equivalent weight of a divalent metal is 24. Divalent metal is 24. Equivalent weight is the 24. Molar mass in this question, volume of H2 liberated as कितना दे रखा है आपको, देखो equivalent weight of a divalent is कितना है 24 आपके पास, and molar mass कितना होगा then
मोलर मास divide by 2. The molar mass divided by 2 is also give the equivalent weight. This is the valency factor in this question. So we can say molar mass is equal to 24 multiplied by 2. It is the 48. कितना हो गया molar mass? 48. अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. We also know that number of mole is equal to weight by molar mass is equal to weight by molar mass is equal to वॉल्यूम टेकन इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर. ये भी नंबर ऑफ मोल का ही फॉर्मूला है. अमाउंट इन ग्राम कितना है? व्हेन 12 ग्राम. दिस इज द 12 ग्राम एंड दिस इज द 24. वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज द 22.4 लीटर. यही तो कैलकुलेट करना था अपने पास. ये कितना आया आपके पास? सॉरी, ये 48 आया आपके पास. मोलर मास कितना है? 48. दिस इज द 48. क्लियर? तो ये 1/4 से मैं कैलकुलेट हो रहा है और ये कितना देगा आपको? 22.4/4 इज इक्वल टू वी लीटर इज इक्वल टू 0.56 लीटर. कितना आया आपके पास? 5.6 लीटर. ये अपन ने कोई एग्जाम्पल लिया है कि कोई यहाँ मेटल होगी, उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है? 24 है. एक ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे we doesn't say about that the equivalent weight of the magnesium is the 24. ये नहीं कह रहे हैं अपन. हमें से कह रहे हैं equivalent weight of a divalent metal is 24. equivalent weight किसी divalent मेटल का कितना है? 24 है. हम सिमिलर इक्वेशन देख रहे हैं. देखिए यहाँ यदि अपन क्या कैलकुलेट करना चाहें, डाइवेलेंट मेटल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, भाई इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को. वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड है. यदि मैं यहीं से ही द आवोगैड्रो लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? देखो यहाँ से वेट, यहाँ पे मेरे पास इसके कितने मोल हैं? 2 मोल है. और 2 मोल से कितने वॉल्यूम बन रहा है? ये गैस स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं. 1 मोल बन रहा है. क्लियर? और यहाँ पर आपके पास मोलर मास कितना? अच्छा, इसका 1 मोल होता तो कितना मोल बनता है? ये 1/2. क्लियर? भाई 2 से 1 बन रहा है तो 1 वॉल्यूम कितने से? 1 वॉल्यूम क्या देता है आपको? 1/2. क्लियर? देन व्हाट इज द मोलर मास? और मोलर मास कितना है आपके पास? मोलर मास. और यदि अपन ग्राम को कैलकुलेट करके क्या निकाल लें? यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लें. सो वी कैन से द इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से चलेंगे अपन. तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द डाइवेलेंट मेटल इज 24. क्लियर? इक्विवेलेंट वेट कितना है? 24. एंड द वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड बाय द 12 ग्राम ऑफ द सेम मेटल. इट मीन्स मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल बनाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट. अमाउंट इन ग्राम इज द 12 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट ऑफ 24. इट इज द 1/2. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हो गए? 1/2. मतलब HCl कितना काम में आ रहा है आपके पास? 1/2 काम में आ रहा है. कितना काम में आ रहा है? 1/2. ये 1/2 है तो ये कितना होगा? 1/4. कितना होगा ये? 1/4 वॉल्यूम होगा. एंड वी नो दैट इफ 1 H2 1 वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 है 22.4 and 1/4 volume of H2 have 1/4 equivalent of H2 have the volume 22.4 divided by 4. It is 5.6 लीटर. तो दोनों साइड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे. वॉल्यूम आपको दिया हुआ है उसके बेसिस पे, लॉ ऑफ आवोगैड्रो बेसिस पे, या मैं क्या करूं यहाँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू भी मैं क्या कर सकता था? क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था. क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.